Hello students, today we are going to discuss about the periodic trends in physical properties. So here you can see what are the physical properties of elements. We are going to discuss each and every physical properties of elements. So you can see here the first physical properties is atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity, in which you have to discuss specially about the atomic radius. How many types of atomic radius are there? What are the bonds formations in atomic radius? If I talk about in the atomic radius, first of all, what is atomic radius? If I talk about atomic radius, atom is considered to be very small, spherical, entirely. So in simple terms, atomic radii can be defined as the distance of the outermost cell of an atom from the center of its nucleus. Being very small, it is usually expressed in nanometer, angstrom or picometer. You can see here the size of an atom, 1.2 angstrom or 1.2 into 10 to the power minus 10 meter, right? So after the size of an atom is considered approximately 0.12 nanometer. Remember this word, the size of an atom is approximately consider this 1.2 angstrom or 0.12 nanometers. Though the define of this radii, it seems to be very simple considering the atom as a spherical object with well-defined boundaries, but quantum mechanics gives a contradictory theories about it. So now let's go through the physical properties of these elements and the atomic radius. How many types of atomic radii are there? Covalent radius, metallic radius, van der Waals radius. You can see this radius, types of radius. Covalent radius, what is covalent radius? If I talk about, you can see here the covalent radius. Each and every step I'll discuss in a proper way. Just have some patience and listen the words very carefully. First of all, the definition seems to be very simple considering the atom as a spherical object with well-defined boundaries, but quantum mechanics gives a contradictory theory neglecting a sharp boundary based on the probability concept. An atom does not have a well-defined boundary since probability of finding an electron is never zero. When even at a large distance from the nucleus, the exact value of atomic radius cannot be calculated. So atomic radius is taken as the effective size, which is the distance of closest approach of one atom to the another atom in a given bounded situation. So first of all, देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जानते हैं ऑर्बिटल जो है दैट इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, जब आप समझ रहे हो कि आखिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, देन यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, राइट? द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैनॉट बी कैलकुलेटेड. So the atomic radius is taken as the effective size, which is the distance of closest approach of one atom to the another atom in a given bounded situation. तो हमेशा याद रखिए एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस किसी भी एलिमेंट का नहीं निकाला जा सकता है. तो हम लोग क्या लेते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच लेते हैं कि एक एटम से दूसरे एटम जो बॉन्डेड होंगे उनके बीच का जो दूरी होगा उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इनका एक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन भी है. द वेरियस नेम्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द एटॉमिक रेडियाई डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशंस एंड द नेचर ऑफ द एटम. तो सबसे पहले आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो रेडियस थे वो थे कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस और van der Waals रेडियस. अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर, द कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉर्मली फॉर्म्ड बिटवीन द नॉन मेटल, हेंस दिस टर्म्स कोवेलेंट रेडियस इज यूज्ड फॉर देम. It is defined as half of the internuclear distance between the two successively covalent or covalently bonded atoms in a molecule. सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ और किस एलिमेंट में पाए जाते हैं. कोवेलेंट को समझने के लिए दो तीन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है. कोवेलेंट अगर आप समझ रहे हैं तो ये स्पेशली पाए जाते हैं नॉन मेटल्स में. नॉन मेटल्स में क्यों पाए जाते हैं? क्यों? बिकॉज यू नो वेरी वेल दे शेयर द इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई कोवेलेंट bond is formed. So especially if I talk about in the non-metals, the covalent radius is used for them. It is defined as half of the internuclear distance between the two successively covalent bonded atoms in a molecule. यहाँ पे आप दे सकते हैं कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू कोवेलेंट डायमीटर अपॉन 2 सक्सेसिव एटम आप देख रहे हैं. इन 2 सक्सेसिव एटम में कोवेलेंटली बॉन्डेड भी, इनका जो रेडियाई है
atomic radii, it can be measured by X-ray or other spectroscopic method. ये इस तरह से आप मेज़र नहीं कर सकते हो, इनको मेज़रमेंट करने के लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा. तो आप सीधा सीधी अगर इसका कोवेलेंट रेडियस निकालना चाहते हैं तो कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायमीटर. कहने का मतलब ये जो दोनों एटम्स है, इस दोनों के एटम के सेंटर से लेकर के एक दूसरे के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द डायमीटर, एंड इफ यू डू द हाफ ऑफ दिस डायमीटर देन यू विल गेट द कोवेलेंट रेडियस. सो द कोवेलेंट रेडियस कैन बी आइदर homodiatomic molecule like that H2, Cl2, Br2 etc. or heterodiatomic molecule just like HCl, HBr etc. तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ों का समझना. होमो का मतलब होता है एक जैसे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है H2, तो इस हाइड्रोजन गैस में जो कोवेलेंट रेडियस है उसका क्या होगा, तो सीधा सीधी हम लोग डायमीटर अपॉन 2 कर सकते हैं. और दूसरा होता है हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल. होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब H2, Cl2, Br2, और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब HCl, HBr, HI, मतलब एक जैसा दोनों एटम नहीं है तो वो हो गया हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, और एक जैसा अगर दोनों एलिमेंट तो वो हो गया होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल. तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट रेडियस अगर आप निकालोगे तो सीधा सीधी क्या करना है, हाफ इंटू डायमीटर, मतलब रेडियस का जो फॉर्मूला है डायमीटर अपॉन 2 उस हिसाब से आप निकाल सकते हो. लेकिन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, एज फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर अ कोवेलेंटली बॉन्डेड क्लोरीन मॉलिक्यूल, अगर क्लोरीन की बात करें आप, जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, द बॉन्ड डिस्टेंस इज 198 पिकोमीटर. अगर मान लीजिए क्लोरीन दोनों के बीच का 198 पिकोमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 198/2 पिकोमीटर, दैट इज 99 पिकोमीटर. इट इज टेकन एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम. द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स यू कैन सी हियर इन. अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई हैं. अब ये कोवेलेंट डायमीटर को देखने से आपको क्या लगा कि दोनों जो होमो या हेट्रो एटम्स के जो होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे मैंने आपको बताया क्लोरीन, इस क्लोरीन का जो कोवेलेंट डायमीटर है 198 पिकोमीटर है. इस 198 पिकोमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 99 पिकोमीटर हो जाएगा. ये हमारा क्लोरीन एटम का रेडियस हो जाएगा. समझ में आई आपको बात. तो उसी तरह से बहुत सारे एटम्स हैं जिनका रेडियस आप निकाल सकते हैं. दूसरा है हमारा मेटेलिक रेडियस. ये क्या होता है मेटेलिक रेडियस? मेटेलिक रेडियस से आने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें बाद में बता देना चाहता हूँ कोवेलेंट रेडियस के बारे में. जैसे मान लीजिए लिथियम का अगर आप निकालोगे, लिथियम का, तो अगर कोई पूछेगा आपको व्हाट इज़ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आप इस तरह से कह सकते हो 152 पिकोमीटर जो है लिथियम का है, बेरिलियम का 111 पिकोमीटर, बोरन का 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74, ऑक्सीजन का 66, फ्लोरीन का 64, सोडियम का 186, मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर, एल्युमिनियम 143 पिकोमीटर, सिलिकॉन 117 पिकोमीटर, फॉस्फोरस 1110 पिकोमीटर, सल्फर 104 पिकोमीटर और क्लोरीन 99. तो इससे आपको क्या समझने को मिला कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो पीरियड में डिक्रीज करता है, राइट? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस इन द पीरियड्स बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल्स. उसी तरह से अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें लिथियम से लेकर सीजियम तक, तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152, सोडियम का 186, पोटाशियम का 231, रुबिडियम का 244, सीजियम का 266. अगर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की रेडियस की बात करूं तो लिथियम का 64, सोडियम का 99, पोटाशियम का 114, अगर ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन का 64, क्लोरीन का 99, ब्रोमीन का 114, आयोडीन का 133 और एस्टेटाइन का 140. The trend in atomic radii across the period and down in the group, we find that the atomic size generally decreases across the period, whereas there is an increase in the size down towards the group, the reason which can be attributed to the variation in the nuclear charge. यही रीज़न है. अगर आपको कोई पूछे कि आखिर पीरियड में जाने पर क्यों घटता है और ग्रुप में जाने पर क्यों बढ़ता है, तो एक सीधा साधा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि आखिर नीचे जब जाता है ग्रुप में तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर जो है
टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप में वो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगते हैं, जिस कारण से एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। और पीरियड में जैसे जैसे आप आगे जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिस कारण से एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। अब आ जाइए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेटेलिक रेडियस से पहले, कि आपको बार बार ये मेटेलिक रेडियस दिख रहा है तो आप सोचते होंगे सर मेटेलिक रेडियस दिखा रहे हैं और कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो कोवेलेंट रेडियस की जो प्रॉपर्टीज़ है, in a period as the atomic number increases, the increasing number of electrons are added to the same valence shell. This increases the effective nuclear charge. Consequently, the force of attraction of the electrons to the nucleus goes on decreasing, and the gradual increase in the effective nuclear charge results in the decrease of atomic size. Down the group or in the vertical column of the periodic table, there is a regular increase in the atomic radii with the increase in atomic number. As we know, in a group there is increase in the principal quantum number n due to the addition of a new cell. The added new cell increases the distance of the valence electron from the nucleus. Consequently, the size of the atom increases. So even though the atomic number goes on increasing, the size increases because another factor known as shielding effect comes into play. The lower energy level electrons, that is inner energy levels, are filled with the electrons, which serves to shield the outer electrons from the pull of the nucleus. Hence the magnitude of the nuclear attractive decreases. अगर कोई पूछे आपको, ये भी दो रीज़न बता देना कि आखिर क्यों पीरियड में घटता है, तो इसका जो मेन शील्डिंग इफेक्ट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि क्या रीज़न है, किस कारण से ये जो है बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया ये क्लोरीन का किस तरह से 99 पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस हुआ। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टर्म है वो है मेटेलिक रेडियस। कोई पूछे आपको व्हाट इज मेटेलिक रेडियस, तो metallic radius is taken as a half of the distance between the two successive nuclei of two adjacent metal atom. For example, the distance between the two adjacent copper atom in solid copper is 256 picometer. Hence, the metallic radius of copper is assigned a value of 128 picometer. तो ये जो आप देख रहे हैं metallic radius का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो adjacent successive जो न्यूक्लियाई हैं, दो एडजेसेंट मेटल की, इन दोनों एटम का जो न्यूक्लियाई से जो डिस्टेंस होगा उसका ठीक आधा, जैसे ये कॉपर का मैंने बताया आपको कि मेटेलिक रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 256, तो अगर रेडियस निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 256/2। उसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस 198 पिकोमीटर था और कॉपर का क्या था 256, लेकिन इनको निकालने के जो मेथड्स थे वो एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब वेरिएशन ऑफ द पीरियोडिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया किस तरह से यह पीरियड में डिक्रीज करता है और ग्रुप में इंक्रीज करता है, इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो देख लीजिए आप। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई दिए हुए हैं, जो एटॉमिक रेडियाई देखने से आपको साफ पता चल जाएगा कि आखिर ये किस तरह से डिक्रीज़ करते हैं पीरियड में और क्या रीज़न है कि ये इंक्रीज़ करते हैं ग्रुप में, राइट। इसको ध्यान से देखना, ये जो मैंने अभी आपको न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जो चर्चा किया था कि आखिर क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, यही रीज़न है ये जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज होता है जिस कारण से उनका एटॉमिक रेडियस सिकुड़ते जाता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़, मतलब एक ही सेल में है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण क्या होता है, इनका साइज कंट्राडिक्ट होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव चार्ज और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जैसे सीजियम मेटल में आप देख लीजिए किस तरह से सीजियम मेटल में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट 6th पीरियड का ये 6 पीरियड है, इसमें आप देख सकते हैं 5th पीरियड तक सब बड़े हैं, लास्ट 6 पीरियड का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल जिसमें आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, 3rd ग्रुप से लेकर के 7 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिस कारण से एटॉमिक साइज घटेगा, लेकिन ग्रुप में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा जिस कारण से एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है दूसरा कंसेप्ट,
जब आपने देख लिया कोवेलेंट रेडियस या मेटेलिक रेडियस किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से घटते हैं ग्रुप में और पीरियड में, इसके बाद में आपको 2-3 चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें समझना भी चाहिए आयनिक रेडियस के बारे में। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियसली कि कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे ग्रुप में इंक्रीज होता है, सिंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, सो atomic radius increases, and in the period as the effective nuclear charge increases, so the atomic radius decreases, right? अब आ जाइए ये सारी चीज़ों के बाद जब आप ये दोनों कंसेप्ट तो समझ गए होंगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है डाउन टूवर्ड्स द ग्रुप और डिक्रीज होता है टूवर्ड्स द पीरियड, लेकिन एक चीज़ और, अगर मैं बात करूँ नोबेल गैसेस जो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन से, ये जो नोबेल गैसेस आप देख रहे हैं, तो ये नोबेल गैसेस जो है इन लोगों से बड़ा होता है। जैसे आप देख लीजिए हाइड्रोजन का 130 है तो हीलियम का 140, नाइट्रोजन का 155, नियन का 154, ऑक्सीजन का 140, आर्गन का जो है मतलब फ्लोरीन का 135, आर्गन का 199। तो इन सब में जो है वंडरवाल फोर्स कहते हैं, बहुत ही वीकली फोर्स होता है ये जो वंडरवाल रेडियस है। वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू वंडरवाल्स डायमीटर अपॉन 2, जैसे ही दो एडजेसेंट एटम के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से ये फोर्स काम करती है। वंडरवाल से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसमें आयनिक रेडियस भी कुछ होता है, जिस आयनिक रेडियस के बारे में भी हमें जानना होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर पहले वंडरवाल रेडियस के बारे में ही बताया तो वंडरवाल रेडियस का भी हम लोग जान लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड neighboring atoms of two adjacent molecules in solid state. This term is used for nonmetals, especially in the covalent compounds, and noble gases. For example, the van der Waals radius of chlorine is 180 पिकोमीटर। तो आपने देखा था किस तरह से क्लोरीन का मतलब कोवेलेंट रेडियस और वंडर वाल रेडियस में जो फ़र्क है। क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस 99 पिकोमीटर होता है, और अगर हम इसकी बात करें जो वंडरवाल फोर्स, तो वंडरवाल फोर्स में जो है 90 पिकोमीटर हो जाएगा। तो ये जो दो न्यूक्लियाई है जो नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स हैं, इनका जो रेडियस होगा वो सीधा सीधी हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब जो डिस्टेंस दिया गया है दो न्यूक्लियाई के बीच का, उसका आधा हो जाएगा। इट इज़ डिफाइंड हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट। द टर्म इज यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स इन कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड नोबल गैसेस। फॉर एग्जाम्पल द वंडर वाल रेडियस ऑफ क्लोरीन इज, चलिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना होगा। तो वंडर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस। अब जैसे यहाँ पे सोडियम का दे दिया आपको, सोडियम का एटॉमिक रेडियस, अब जो है आयनिक वाला रेडियस आ गया है, लेकिन वंडरवाल का याद रखना है आपको, क्योंकि वंडरवाल भी हमें बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, सिंस नोबेल गैसेस के लिए ये वंडरवाल रेडियस ही होते हैं। वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू डी का मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सो वंडरवाल रेडियस ऑफ क्लोरीन इज हाफ इंटू 1/3, हाँ याद रखना क्लोरीन का 130, मतलब ये जो आप पढ़े हो वो 360 पिकोमीटर होता है वंडरवाल रेडियस, लेकिन उसका मतलब वंडरवाल डायमीटर, लेकिन उसका आधा करोगे तो 180 पिकोमीटर हो जाएगा वंडरवाल रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो मतलब क्या हुआ इसमें, आपने देखा कि वंडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियस। In case of noble gases, we can only measure van der Waals radius because they normally do not form chemical compounds and are held together by weak forces of attraction at large internuclear distances. This is the reason van der Waals radius is always larger than the covalent radius. The same reason can be attributed to the noble gases having the largest radii in the respective periods. अब आ जाइए आयनिक रेडियस के बारे में। या आयनिक रेडियाई क्या है? The removal of an electron from an atom result in the formation of a cation, whereas the gain of electron leads to the formation of an anion, right? यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो किसका दिया, ये कैटायन का फॉर्मेशन किया। सो द आयनिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एनायन और कैटायन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल द बॉन्ड लेंथ बिटवीन एन एनायनिक मॉलिक्यूल, जब आप एनायनिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ निकालोगे तो ये जो फिगर में आप देख रहे हो
द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायनिक एज एनायनिक मॉलिक्यूल की बात करें, अभी हम फिलहाल सोडियम प्लस की बात कर रहे हैं, तो सोडियम प्लस में in general the ionic radii of element exhibit the same trend as atomic radii only. The size of cation is always smaller than the parent atom because the cation formed after the loss of electron has fewer electrons, though the nuclear charge remains the same. Effective nuclear charge increases, so the remaining electrons are more strongly pulled towards the nucleus, thus reduces the size of the cation. ये तो था हमारा cation का. अब देख लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन का जो आप देख रहे हो, तो ये फ्लोरीन, the size of an anion is always larger than the parent atom because the anion formed by the gain of electrons has more electrons. अब इसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड अ डिक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा. तो रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा. This decrease in effective nuclear charge causes the loosening of force of a nuclear attraction resulting in the increases of the size of an ion. तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आयनिक रेडियस जो फ्लोरीन मतलब नाइट्रेट का, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, एल्युमिनियम प्लस, ये सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के अकॉर्डिंगली कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इनका रेडियाई पिकोमीटर में कितना होगा. द रेडियाई ऑफ दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होगा, द रेडियाई ऑफ दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस. As already explained, the size of the cation is always smaller than the parent atom, whereas the size of the anion is always larger than the parent atom. The successive loss of electrons from an atom increases the effective nuclear charge, whereas the successive gain of electron decreases the effective nuclear charge. This is the reason the cation with the greater positive charge has a smaller radius because of the greater nuclear attractions of the nucleus from nucleus to the electrons, while the anion with the greater negative charge has a larger radius because in this case the net repulsion of the electrons outwith nuclear charge can cause the expansion in sizes. तो ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आने पर साइज बढ़ने लगता है, राइट. तो यहाँ पर जो आप डायग्राम्स देख रहे हो, N3 माइनस, O2 माइनस, ये सारे का आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस. इस चीज़ को गौर से देखना कि किस तरह से आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है. N3O2 F माइनस, सोडियम प्लस का 98 है, मैग्नीशियम 2 प्लस का 65, एल्युमिनियम 3 प्लस का 45. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है. प्रोटॉन्स अलग अलग है सबके पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है. लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियाई किस तरह से घटता है, राइट. तो ये जो था हमारा एटॉमिक रेडियाई के बारे में, जिसमें आपने अभी कौन कौन से रेडियाई के बारे में पढ़ा. आपने 4 रेडियाइज के बारे में पढ़ा, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस. इन चारों रेडियस पढ़ने के बाद अब जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. कोई पूछेगा आपको व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या आप बता सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको. द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन to form a cation is given by its ionization energy. Sometimes it is also known as ionization potential or ionization energy. याद रखना, ionization enthalpy को ही ionization potential भी कहा जाता है, ionization energy भी कहा जाता है, which can be defined as the minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom in its ground state, resulting in the formation of positive ion. किसको कहोगे आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी के मतलब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं, राइट. इनका जो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल होता है. सिंस एनर्जी है, एनर्जी को रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम के कारण. द आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल, जो आपने देख लिया. अब किस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इट इज ऑल्सो गिवन एज इंसाइट टू easy with which an atom can change itself into cation by losing one electron, or similarly smaller to the ionization enthalpy, easier for the atom can change itself into cation by losing electrons.
अब कोई भी एलिमेंट आप देख लीजिए, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी किस तरह से बढ़ेंगे और घटेंगे, ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर 13 प्रोटॉन वाला एक एलिमेंट है जिसका नाम एल्युमिनियम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, 12 प्रोटॉन्स हो गए जो यूनिपॉजिटिव भी हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अब आप देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो पेरेंट एटम से इसका साइज छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, राइट। देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अब 13 में से 2 निकल गया तो अब 11 हो गया, डाई पॉजिटिव आयन होंगे। तो अब क्या होगा, धीरे 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 मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है बढ़ते जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 निकलेंगे, तो किस तरह से इनका एटॉमिक नंबर, ये सारे देख लीजिए एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं और इनका जो एटॉमिक नंबर के साथ कितने अमाउंट ऑफ जूल, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये जो पीरियोडिक टेबल के जो इनर्ट गैस है, उस इनर्ट गैस के ये एलिमेंट्स हैं। जब आप इन सारी चीज़ों का आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में आप जब समझना चाहते हैं तो दो चीज़ को और आप समझ लीजिए कि आखिर ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहना क्या चाहता है हमसे, इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कैटायन या एनायन की मैं बात करूँ, द आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज expressed in kilojoule per mole. It also gives an insight to the easy with which an atom can change itself into cation by losing electron. यहाँ पे देख लीजिए खुद जो है कैटायन में कैसे कन्वर्ट होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देता है। स्मॉलर इज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ईजियर फॉर द न्यूट्रल एटम टू चेंज इटसेल्फ इनटू पॉजिटिव आयन। मतलब न्यूट्रल करने के लिए अगर एक पॉजिटिव आयन आप निकाल रहे हो ना तो क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा क्योंकि वहाँ से न्यूट्रल एटम उसको एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। सिंस द एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड इट इज टेकन इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसीलिए इसको आप देखते होंगे IE1, IE2, ये क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फॉर द इंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। द आयोनाइजेशन इंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर सच सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाएगा। This is due to the fact that after the removal of an electron, the number of electrons decreases while the nuclear charge remains the same. Consequently, the remaining electrons are held more tightly by the nucleus and removal of such successive electrons become more difficult. Hence, successive ionization enthalpies goes on increasing. So, order becomes the first ionization energy is less than second ionization energy, is less than third ionization energy, and so on. So, when the first ionization enthalpies of elements having atomic number up to 60 are plotted in a graph, you can see here, of striking periodicity is obtained. The maxima positions in the graph is occupied by the noble gases because of the high ionization enthalpies due to completely filled octet acquiring a stable electronic configuration. On the other hand, the alkali metals occupy the minima positions in the graph, correlating the lower ionization enthalpies and their high reactivities. तो आपने यहाँ पे देखा आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। सो यू कैन सी हियर। अब देख लीजिए यहाँ पर जिस तरह से एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इनका आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टू नोटिसेबल ट्रेंड्स टू ऑब्जर्व इन द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन enthalpies, it increases as we move across the period while it decreases down the groove. These trends are understand by the concept of this first period and second period periodic table elements. To have a clear understanding about these two trends,
we have some factors to be considered: the attractions of electrons toward the nucleus and the repulsion of electrons from each other. ये दो रीज़न है. कोई पूछेगा आपको क्यों आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा या कम होता है, तो इसके दो प्रमुख कारण हैं. पहला प्रमुख कारण है द अट्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे बाहर, न्यूक्लियस से एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जाओगे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के प्रति वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. लेकिन द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन होता है एक दूसरे से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जिसको हम कहते हैं, द फोर्स of attraction between the nucleus and the outermost electron increases with increase in nuclear charge. Greater is the nuclear charge, greater will be the energy required to pull the electron from the atom. Hence, with increase in nuclear charge, ionization enthalpy increases. However, the effective nuclear charge experienced by a valence electron in an atom will be less than the actual change on the nucleus due to the phenomenon known as shielding effect or screening effect, where the force of attraction by the nucleus on the valence electron is reduced due to the repulsive forces exerted by the inner shell electron. ये दो चीज़ का अगर आपके पास जानकारी है, कोई पूछेगा क्या है ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसका बहुत ही बढ़िया रिलेशन से हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी से, जो आईपीवी जाना जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अब एक इलेक्ट्रॉन को आप निकल, जैसे नाइट्रोजन की बात कीजिए, नाइट्रोजन में क्या होता है 2p3 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो ये क्या है, हाफ फील्ड है, राइट. 2p3 जो है हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल. अगर इसमें से 1s2 जो है फुलफिल्ड है, 2s2 फुलफिल्ड है और 2p3 जो है, द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कन्फर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. हाफ फील्ड होने के बाद जो है एक्स्ट्रा. लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2p4 है. ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो उसका 2p4 है. तो उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन का कम होगा, लेकिन अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो फर्स्ट से ज़्यादा हो. क्यों? क्योंकि वो हाफ स्टेबल में आ जाए, वो भी 2p3 में आ जाए. लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई पूछेगा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, और यहाँ पे हाफ फील्ड से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ऑक्सीजन का क्या होगा, कम होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट. अब आ जाओ, जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया तो अब इसके जो एनोमोलस बिहेवियर बिटवीन द एटम्स है, किस तरह से ये ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो ये सारी चीज़ों का आप देख लीजिए. पीरियड में क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज करता है. अब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बहुत ही कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उसको रिमूव करने में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी. तो कोई पूछेगा आपको कि लिथियम का IE1 ज़्यादा होगा या सीजियम का, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं लिथियम का. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर से बहुत नज़दीक है. ठीक है, तो ये फिजिकल ट्रेंड्स में अभी तक हम लोगों ने क्या सब देखा, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन. अब जो है तीसरा टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, राइट. चलिए, अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को समझने से पहले दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. यहाँ पे जो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम में क्या होगा, ये डायग्राम में एक इलेक्ट्रॉन जाके जुटेगा. मीन्स electron gain enthalpy can be defined as the amount of energy associated with the gain of electrons by the isolated gaseous atom. It is represented by delta Heg measured in kilojoule per mole. It provides the measure of Eg of electron can be added to an atom forming a negative ion. जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है, राइट. तो उसके ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा, राइट. इफ वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड देन इट विल फॉर्म अ नेगेटिव आयन. डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. दो फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय द एटम. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इसको कहा जाता है, जिसको मैंने आपको बताया डेल्टा Heg से इसको डिनोट किया जाता है, जो स्पेशली जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से हुआ, राइट. तो उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो गया है. इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दोनों हो सकते हैं, राइट. इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकते हैं. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी में से जो स्टेबल है उसमें से निकालिएगा तो इंडोथर्मिक. उसी प्रकार से आप देख लीजिए नोबल गैस है, हेलोजन है, हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों करते हैं, राइट. तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पे शो किए गए हैं. इस चीज़ को ध्यान से देखना आप. इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को
the release of energy represented by the negative values, the atom in order to gain stability tend to gain an electron. As in the case of group 17, halogen shown a strong tendency to gain electrons to attain a stable noble gas electronic configuration. This is the reason that halogen have very high negative electron gain enthalpy. यही रीज़न है कि halogens के पास सबसे ज़्यादा high value of electron gain enthalpies है. It shows that the atom is reluctant for the addition of a new electron in its valence shell, and this addition of electron is driving it towards the instability. For this addition of electron, energy needs to be spent making the delta H, e.g. positive. Let us take some example of noble gases which have large positive electron gain enthalpies, because the added electrons has to enter the next higher principal quantum level leading to a very unstable electronic configuration. अगर आप बात करें यहाँ पर तो सिर्फ हेलोजन 17th ग्रुप का देखिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ फिर इनर्ट गैस का, तो इनर्ट गैस का क्या होगा वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर समझना होगा, राइट. ग्रुप 18 का देख लीजिए यहाँ पर. तो क्यों होता है? क्योंकि ग्रुप 18 जो है फिर उसमें जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, राइट. हीलियम का देख लीजिए यहाँ पर 2s2 होता है, 1s2 में अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2s में जाएगा, मतलब न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट. तो न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कारण जो है देख लीजिए यहाँ पर हीलियम एटम था, उसका ऑलरेडी जो है 2s2 में इलेक्ट्रॉन्स थे. तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, इन जनरल द इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy becomes more negative in going from left to right in a period, while it becomes less negative going from top to bottom in a group. However, the variation in electron gain enthalpies does not show a perfectly regular trend along a period or a group within a number of exceptions. यही इसके मेन रीजन है. बहुत सारे एक्सेप्शंस है इसमें. The effective nuclear charge increases from left to right across a period, and consequently it would be easier to add an electron to a smaller atom, since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus, right. So it is expected from the electron gain enthalpy values to be less negative moving down towards the group, because the size of the atom increases and the added electron would be farther from the nucleus. However, some anomalous trends are observed. You can see here that which type of trends: atomic size is increasing, electron gain enthalpy decreases. Got it? So you can see here some of the trends has increased. Anomalous behavior down towards the group. You can see electron gain enthalpy of oxygen is less negative than of sulfur. मतलब सल्फर का -200 किलो जूल पर मोल है, ऑक्सीजन का -141 किलो जूल पर मोल है. यहाँ पे देख लीजिए आप. And the electron gain enthalpy of fluorine -328 kilojoule per mole is less negative than the chlorine -349 kilojoule per mole. This is because when an electron is added to oxygen or fluorine, the added electron goes to the smaller quantum level n is equal to 2. Due to the small size of the interelectronic repulsion increases, causing the decreases in the electron gain enthalpy values. On the other hand, in sulfur and chlorine, the electron enters into the third quantum level, which occupies a larger region of space where the electron repulsion is much less. Hence there is increase in the values of electron gain enthalpy. यही रीज़न है. आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, there is increased values of electron gain enthalpy. यही रीजन है सल्फर और क्लोरीन का. ये जो बिहेवियर्स आप देख रहे हैं, एनालोमस बिहेवियर अक्रॉस द पीरियड, बेरिलियम, nitrogen, neon shows positive electron gain enthalpy values while moving across the period. This is happening because of the extra stability of the atoms due to the half-filled or full-filled degenerate orbitals. The addition of electrons of the atoms of these elements require energy. Here beryllium and neon have fully filled orbitals where nitrogen has half-filled orbitals. Last है हमारा electronegativity. बता सकते हैं आप what is electronegativity? किसको कहोगे electronegativity? Electronegativity of an element is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. Is to qualitative measure. Once more time I would like to tell you what is electronegativity of an element. Electronegativity of an element is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. अपनी तरफ shared paired electrons को क्या करना, ऐड करना.
electronegativity of an element is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself. It is qualitative measure because unlike ionization enthalpy and the electron gain enthalpy, which is related to the atom, is the isolated gaseous state. It is the bonded state and hence not a measurable quantity, although a number of numerical scales of electronegativity such as Pauling scale, Mulliken-Jaffe scale, Ellered-Rochow scale has been developed, yet the Pauling scale is most widely used, and American scientist Linus Pauling in 1922 assigned the arbitrary a value of 4.0 to fluorine, the element considered to have the greatest tendency to attract the shared pair of electrons. Approximately values of electronegativity of a few elements you can see here. ये तीनों साइंटिस्ट पॉलिंग, मुलिकन और अल्फ्रेड रोचो ने ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया है. हर साइंटिस्ट का अलग है. सबसे पहले पॉलिंग ने ही दिया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है. 1922 में इसने पॉलिंग ने असाइन किया था कि आखिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या. ये टेंडेंसी है किसी भी एटम का जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है. शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना. यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लीजिए, वाटर में ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1. चूँकि ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. देख लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ही ये जो अपना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो आकर्षित करता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है. मतलब जो टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल्स के थ्रू अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में बढ़ेगा और ग्रुप में घटेगा. देख सकते हैं आप, लिथियम का 1.0, सोडियम का 0.9, मैग्नीशियम. इस तरह से आप इस चीज़ को अगर आप समझें. लेकिन पीरियोडिक टेबल में जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाएंगे, मैग्नीज वाले सीरीज में मैग्नीज का 1.6, टाइटेनियम का 2.1, रेडियम का 1. तो कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज. लेकिन याद रखना मेनली जो हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, जिसमें ये जनरली ग्रुप में डिक्रीज करता है और पीरियड में इंक्रीज करता है. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट. याद रखना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझने की बात है. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट. अगर नन मेटल की बात करो तो देख लो आप नन मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. ये नन मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है. The electronegativities of any given element is not constant. It varies depending on the element to which it is bonded. क्यों? क्योंकि किस एलिमेंट के साथ वो बॉन्डेड है ये डिपेंड करेगा उसके साथ. अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण उस तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा. इवन दो इट इज़ अ क्वालिटेटिव क्वांटिटी, इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्शंस ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड विच एग्जिस्ट between the two bonded atoms. The electronegative values of the elements increases along the period from left to right and decreases down towards the group. This is because as we move across to the period from left to right, the nuclear charge increases, atomic radius decreases, whereas the moving down towards the group, atomic radius is increases, right? अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो atomic radius as well as screening effect also increases towards the group. Consequently, the nuclear attraction on the electron increases across the period and decreases down towards the group. Thus, on observing the electronegative values of the element in the table, the electronegativity with a given value 4.0 fluorine is by Pauling, and cesium has a very low electronegativity, that is 0.7. The tendency to attract the shared pair of electron is very low in cesium. याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर बात करें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये डिपेंड करता है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये चेंज होते रहता है कि आखिर किस एलिमेंट के साथ वो अट्रैक्ट कर, किस एलिमेंट का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इट डिपेंड्स ऑन दैट, ऑन कलेक्टिंग ऑल द एविडेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy. We find they all to be closely related to each other. For example, as the effective nuclear charge increases, the atomic radii decreases in a period, and the electronegativity increases. The ionization enthalpy and negative electron gain enthalpy also increases. This shows the tendency to gain electron is increasing
that in non-metallic character increases and metallic character decreases from left to right in a period. On other hand, moving down towards the group, the shielding effect increases, the reducing of the nuclear force attraction on electrons, consequently the atomic radius also increases, electronegativity decreases, the ionization enthalpy and negative electron gain enthalpy value decreases. This shows that the tendency of donating electron increases, metallic character increases and non-metallic character decreases. तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आज हमने ये सीखा। याद रखना, ये पॉलिंग स्केल के थ्रू जो है बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला क्या था, मुलिकन स्केल का फॉर्मूला क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुलिकन स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला था फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस फर्स्ट मीन्स IE1 प्लस EA1 अपॉन 2। अब कोई पूछेगा व्हाट इज ionization enthalpy of the atomic radius upon 2 and electronegativity by the Pauling scale, that is Mulliken scale divided by 2.8। तो ये फॉर्मूलाज थे मुलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जो हम लोग बाद में इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये पीरियोडिक ट्रेंड्स बढ़ते या घटते थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये सारे थे, जो चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने अभी तक देखा, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। Different scales have been developed to measure it, such as Pauling scale, Mulliken-Jaffe scale, and Andred-Rochow scale. Of these scales, the Pauling scale, named after its discoverer Linus Pauling, is the most widely used scale to measure electronegativity. Pauling assigned an arbitrary value of 4.0 to fluorine. The table shows the approximate value for the electronegativity of few elements based on the Pauling scale. The higher the difference in the electronegativity of two bonded atoms, the more is the probability of the bonding electron pair to localize around the more electronegative atom. For example, in the case of water, oxygen being more electronegative pulls the shared pair of electrons closer to itself. As a result, the hydrogen atoms in water are slightly electron deficient, whereas the oxygen is electron rich, causing an overall dipole moment in water. Electronegativity increases across a period. The increase in electronegativity across a period is due to the increase in effective nuclear charge. Smaller atoms have high electronegativity values than the bigger atoms. The larger the size of the atom, the lesser the tendency to attract the shared pair of electrons. This is why electronegativity decreases down a group. As shown here for the group 1 elements. The noble gas elements have zero electronegativity due to the stable octet configuration in their outer shells. Non-metallic elements have stronger tendency to gain electrons. Thus, electronegativity increases with the increasing non-metallic nature of elements across a period. As the elements down a group exhibit increasing metallic nature, the electronegativity also decreases. You had learned that the reoccurrence of similar outermost electronic configuration after certain regular intervals causes periodicity in the physical properties of elements. Now let's see how periodicity affects the chemical properties of elements. Oxidation state is one of the periodic properties of an atom. According to IUPAC, an oxidation state can be defined as a measure of the degree of oxidation of an atom in a substance. In simpler terms, it can be defined as the number of electrons that have been removed from an element called positive oxidation states, or the number of electrons
electrons that have been added to the element, called negative oxidation states. So, the oxidation state of a monoatomic ion is equal to the net charge on the ion, positive or negative. The oxidation state of any element in the uncombined form is zero. So, oxidation states are typically represented by integers that assume positive, negative, or zero values. How do you calculate the valence or oxidation states of elements? They can be deduced from the outer electronic configurations of elements. For representative elements, it is usually equal to the number of electrons in the outermost shell and or 8 minus the number of outermost electrons. As can be seen from the table, for representative elements belonging to groups 1, 2, 13, and 14, the oxidation states shown by elements is given by the number of valence electrons. However, for groups 15 through 17, the oxidation states are given by number of electrons in the outermost shell and or 8 minus the number of valence electrons. Transition and inner transition elements exhibit variable oxidation states. Along with transition, elements also show the oxidation states of inner transition elements. Now, let's understand the role of oxidation states of individual elements during the formation of compounds. The number of atoms of each element required for compound formation depends on the oxidation states of the elements. For example, magnesium belongs to group 2 and therefore shows an oxidation state of +2, whereas oxygen belonging to group 16 has an oxidation state of -2. Therefore, one atom each of these two elements are required to form a compound. Hence, the formula of magnesium oxide will be MgO. Note that magnesium oxide is an ionic compound, where magnesium loses electrons and oxygen gains electrons. Also note that the sum of the oxidation numbers of all the atoms or ions in a neutral compound like magnesium oxide is 0. But what happens in case of covalent bonding, where elements only share electrons, not gain or lose electrons? The oxidation state exhibited by an element in a covalent bond is equivalent to the charge acquired by its atom based on its electronegativity with respect to other atoms in the compound. The more electronegative element in a compound is given a negative oxidation state, whereas the less electronegative one is given a positive oxidation state. For example, in case of chlorine oxide, oxygen has a greater electronegativity as compared to chlorine. Therefore, oxygen atom shows an oxidation state of -2, whereas the two chlorine atoms show an oxidation state of +1 each.